بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ میں ہوں ذل ہما اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم میں استعفوں کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں، تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ حکومت کی پریشانی سب کے سامنے ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کامیابی سے جاری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت ختم کرنا پڑے گی۔ جاتی امراء میں مریم نواز سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، عمران خان پہلے دھمکیاں دے رہے تھے، اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے۔ اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں، مودی حکومت مخالف تحریک کے اگلے پلان پر بات ہوئی، استعفے آ گئے۔ وفاقی وزراء رابطے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی حکومت سے بات کرنے کا پی ایم سے این آر او مانگ رہی ہے۔ سلیکٹڈ راستے سے اب ہٹ جائیں، ہماری تحریک پر خون خرابہ نہیں چاہتے۔ دیکھو، میرا یہ خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کنٹینر دوں گا، تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ میں سڑک پہ کنٹینر لگاؤں گا اور ان کا راستہ روکوں گا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نواز شریف سے اس کا مقابلہ ہے یا پی ڈی ایم سے اس کا مقابلہ ہے، ہمیں تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ ڈی جے بٹ صاحب سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر کرسیاں اور ٹینٹ سروسز والوں سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر جہاں پر میں نے کل ریلی کے دوران کھانا کھایا تھا اس بٹ کڑاہی جو ہے اس کے اونر سے ان کا مقابلہ ہے۔ مجھے تو یہ ابھی سمجھ نہیں آئی۔ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے، وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف مریم نواز کہتی ہیں کہ 13 جلسے کا نہیں، فیصلے کا روز ہے، فیصلہ اپنے حق کے حصول یا پھر فیصلہ کرنے کا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مہنگائی کے اس چینی چوری کے خلاف فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب تک آپ نے جس طرح پی ٹی ایم کے جلسوں میں حکومتی جبر کو شکست دے کر شرکت کی، وہ بے مثال ہے۔ جس مقام پہ حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر قرارداد پاکستان منظور کی، وہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے کر آپ انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ 13 دسمبر صرف ایک جلسے کا نہیں بلکہ فیصلے کا دن ہے، فیصلہ اپنے حق کے حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتے کا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، مہنگائی کے عذاب کے خلاف، معیشت اور روزگار کی تباہی کے خلاف، آٹا چینی چوری کے خلاف، 90 روپے کلو آٹے کے خلاف، 115 روپے کلو چینی کے خلاف، مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف، کشمیر کے سودے کے خلاف، اسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف، مہنگی ادویات کے خلاف، جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف، طلباء کے وظائف کی معطلی کے خلاف، آئین اور پارلیمان کی پامالی کے خلاف، اظہار رائے پر پابندی کے خلاف،
वोट की चोरी के खिलाफ फैसला आपने करना है। अब तक आपने जिस तरह पीडीएम के होने वाले जलसों में हुकूमती जबर, बर्बरियत और हट धर्मी को अपने जज्बा अजीम से शिकस्त दी, वो मिसाल है। घरों से निकलिए, अपनी आवाज और भरपूर शमूलियत से इस फैसले पे मुहर सब्त कर दें और बता दें इन जाली हुक्मरानों को कि जबर की रात कट चुकी, अब इंशाअल्लाह एक आजाद सुबह होने को है। हमारा यही सफर हम सबको निजात की मंजिल तक लेके जा रहा है। मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, आपसे अब 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पे मुलाकात होगी। आपकी मुंतज़िर आपकी बेटी। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कुछ फैसलों से इख्तलाफ करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी जराए ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर के ओहदा छोड़ने की खबरों की तस्दीक करते हुए कहा कि वो थोड़ा जज्बाती हो गए हैं, इन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जल्द मान जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जमात नहीं छोड़ी, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान की हैसियत से काम करने से इनकार कर दिया है। बयान में कहा गया कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर को पार्टी के कुछ फैसलों पर इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उन्हें मनाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान की जायदादें मंजर आम पर ले आए। दस्तावेजात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान, डीआई खान, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत दुबई में भी प्रॉपर्टी है इनकी। दस्तावेजात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के 2 घर और 1 प्लाट डीआई खान में है, 1 बंगला F8 इस्लामाबाद में है, जबकि 1 फ्लैट दुबई में है। दस्तावेज में बताया गया कि JUI सरबराह की कराची और कोयटा में दुकानें हैं। इनका 1 घर और 5 एकड़ ज़रई जमीन अब्दुल खलील डीआई खान में है, 1 घर और मदरसा और 5 एकड़ जमीन शूरकोट में है। हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान ने 3 अरब मालियत की जमीन चक शहजाद में खरीदी और फरोख्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की 47 लाख मालियत कमर्शियल अराजी भी है, जबकि 15 लाख मालियत की कमर्शियल अराजी अब्दुल खलील डीआई खान में है और शूरकोट में 25 लाख मालियत की कमर्शियल अराजी भी मौलाना फजलुर रहमान की है। हुकूमत ने सियासी दर्जा हरारत कम करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन से मुज़ाकरात समेत दीगर अमूर पर हिकमत अमली तैयार कर ली है। सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने 3 वफाकी वज़रा की अपोजिशन से राब्तों की तस्दीक कर दी। एहसन इकबाल ने वफाकी वज़रा के राबतों की तस्दीक करते हुए कहा, 3 वज़रा ने अपोजिशन के चंद लोगों से राबिता किया है, ताहम उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमती टीम अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कोशां है ताकि कोरोना की खतरनाक सूरत हाल में जलसे न करने से मुतल्लिक अपोजिशन से बातचीत की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को भी इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को अपोजिशन हलकों में अहम हैसियत हासिल है। विपाकी काबीना में अहम तब्दीलियां कर दी गईं। शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया गया। रेलवे का कलमदान आजम सवाती को, जबकि अजवाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल की वजारत दे दी गई। वफाकी मैदान में वज़रा की फील्ड तब्दील कर दी गई। वज़ीर आज़म ने अहम तरीन वजारत दाखिला शेख रशीद के सपुर्द कर दी। एजाज शाह को नारकोटिक्स कंट्रोल का कलमदान दे दिया गया, जबकि आजम सवाती रेलवे के वजीर होंगे। मशीद खजाना से वफाकी वजीर बनने वाले हफीज शेख को एक बार फिर वजारत खजाना का कलमदान सौंप दिया गया। वजीर आजम इमरान खान से शेख रशीद ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और नई जिम्मेदारी से मुताल्लिक अमूर पर भी मुशावरत की गई। शेख रशीद ने एतमाद करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर एजाज शाह ने भी मुलाकात की। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें काबीना में होने वाली हालिया तब्दीलियों पर भी हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को जलसे की खुली इजाजत दे दी। 2 टूक पैगाम देते हुए कहा कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। मुखालिफिन शौक से जलसे करें, इस्लामाबाद भी आए, हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इक्तदार के भूखे लोग इतवार बाजार लगाने जा रहे हैं। पीडीएम वाले कहते हैं कि हम इमरान खान से बात नहीं कर सकते, वो बताएं कि फिर किससे बात करनी है। मुझे कोई टास्क नहीं मिला, अपनी जिम्मेदारियों का पता है। हमने भी यहाँ 126 दिन पड़ाव किया था, कोई नतीजा नहीं निकला। और जो महीने आप इंतखाब कर रहे हैं वो सन्नाटे की सर्दी है,
اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آپ نے دنیا کی شہریتیں لی ہیں. اپنا بچہ روئے تو آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے, غریب کے بچے کو درد ہو, وائرس ہو تو آپ کا سر درد ہوتا ہے. اس ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس ملک میں جو کوشش کی جا رہی ہے یہ ناکام ہوگی. میں بطور وزیر داخلہ ساری اسلامی قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کی آواز ہوں. جتنے دینی مدرسے ہیں وہ اسلام کے مینار ہیں, اور جو منشیات فروش ہیں, جو قبضہ گروپ ہیں, جو اس ملک میں بارڈر کراسنگ ہے, جو اس ملک کو اندر سے, اس ملک کے سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں. پاکستان کی عظیم فوج وہاں اس جوش اور جذبے سے بیٹھی ہوئی ہیں. اس ملک کو اندر سے خطرہ ہے. اس ملک میں فوراً انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ اس ملک کو اندر سے انتشار پھیلایا جائے, اور جو لوگ اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے. میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک سچائی کی سیاست اس کو ناکام بنانے کے لیے, جس میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے آپ بتائیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح. اگر آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرنی تو دل کی اندر کی بات باہر لائیں کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں, یہ اپنے کیسز کا نجات چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 14, 15, 16 آپ دیکھیں گے کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی اس کے لیے خوشخبری ہیں, حکومت کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے ناکامی. تو دوسری جانب شاہد حقان عباسی کہتے ہیں جس سے ریلوے نہیں چلی اس کو وزارت داخلہ دے دی گئی, جس سے وزارت داخلہ نہیں چلی اسے نارکوٹکس کا وزارت بنا دیا گیا. اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد حقان عباسی نے کہا کہ پی ڈی ایم کا لاہور جلسہ ضرور ہوگا, سینکڑوں مقدمات درج کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ملک آپ کی نالائکی اور کرپشن برداشت نہیں کر سکتا. حکومت تو ناکام ہو چکی ہے اپنے کام میں. اب وزیر کو ادھر کریں کسی کو ادھر کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ تو اس کابینہ کا خاصہ ہے کہ ہر وزیر اپنے کام کے علاوہ ہر کام جانتا ہے اور اسی پر بات کرتا ہے. آج تک کوئی وزیر یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے اپنے محکمے میں پاکستان یا پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کیا کام کیا. باقی نقصان تو ایک جگہ چھوڑ دیں, صرف ایک بچہ ایک کلاس میں فیل ہو جائے اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. تو جسے ریلوے نہیں چلی اس کو وہ دے دیا وزارت داخلہ دے دی, جسے وزارت داخلہ نہیں چلی اس کو نارکوٹکس دے دیا, اور جو بچہ سارے امتحانوں میں فیل تھا اس کو ریلوے دے دی. یہ ریکارڈ کی بات ہے. جو بچہ ہر جگہ فیل ہوا عدالت نے اس کو نکالا, آپ نے اس کو وزارت ریل دے دی ہے. اور وزیر خزانہ انہی کو بنا دیا جنہوں نے 2 سال میں ہماری معیشت کو تباہ کر چکے. تو میں پھر کہتا ہوں کچھ رحم فرمائیں. لاہور میں ریلی نکالنے پر مریم نواز سمیت لیگی رہنما اور کارکنان کے خلاف مزید 4 پرچے کٹ گئے. اشتعال انگیز تقاریر, ساؤنڈ سسٹم ایکٹ, روڈ بلاک اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کی دفعات شامل ہیں. کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے الزام میں مریم نواز نے جس ہوٹل میں کھانا کھایا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا. مریم نواز کی ریلی کے خلاف گوال منڈی پولیس نے 2 مقدمات درج کیے. نامزد افراد میں فیصل چودھری, ارشد, عامر خان اور عرفان بٹ شامل ہیں. ایف آئی آر میں 100 سے زائد نامعلوم لیگی کارکنان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. تھانہ لوہاری گیٹ پولیس نے بھی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی, روڈ بلاک اور اشتعال انگیزی تقاریر کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا. مقدمہ میں ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے والے عبد الرحمان, لیگی رہنما کامران کاشف گجر, محمد طارق اور محمد جاوید کو نامزد کیا گیا. مریم نواز کی ریلی کے خلاف تھانہ مزنگ پولیس بھی حرکت میں آئی اور لیگی رہنما سمیت 200 سے زائد کارکنان کے خلاف پرچہ کاٹ دیا. اشرا میں بھی مریم نواز کی ریلی کا استقبال لیگی کارکنوں نے مہنگا پڑ گیا. استقبالیہ کیمپ میں موجود لیگی رہنما توصیف شاہ کے 3 بھانجوں حمزہ ساجد, کاشف ساجد اور سید آفاق ساجد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا.
अरकान असम्बली की मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि सियासी लोग हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। वजीर आला मुलाकात करने वाले लीगी MPs के तादाद का सवाल गोल कर गए। मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात सर सुना को सियासी लोग हैं, सियासी बातें तो चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। सियासी लोग सियासी मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात सर सुना को सियासी लोग सियासी मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात सर सुना को सियासी लोग हैं, सियासी बातें तो चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। सियासी लोग सियासी मुलाकातें करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात। वज़रा ने PDM की एहतजाजी सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे मुल्क के खिलाफ एक साजिश करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल बनाना जरूरी है। हुकूमत और अपोजिशन के लिए मोहतरम शख्सियात को आगे आना चाहिए। ऐसी शख्सियात मुज़ाकरात का माहौल बेहतर करने में किरदार अदा करें, मौजूदा सूरत हाल में तलखियां कम करें, ये मुल्क के लिए जरूरी है। शहबाज गिल का कहना था कि सजा याफ्ता मुजरिम के कहने पर इस्तीफे स्पीकर की बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा करना जाली इस्तीफों की दलील है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की बजाय इस्तीफे स्पीकर को दें। PDM के स्टेज पर इकट्ठे ये करप्शन ज़दा चेहरे पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं अवाम वजारतों की नहीं निजाम की तब्दीली चाहते हैं। वजीर आजम कंटेनर फराहम करने का दावा करते थे, अब सियासी मुखालफिन के खानों पर मुकदमात बन रहे हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि जलसों पर पाबंदी जमहूरियत में नहीं मार्शल के दौर में होती है। हुकूमत संजीदा रवैया अपनाए और अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दे। आजाद अदलिया और आजाद मीडिया पर यकीन रखती है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया, जबकि 24 घंटों में मजीद 50 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 8,653 हो गई। मजीद 3,047 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,32,327 हो गई। सेहतयाब 44,582 मरीज हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 50 मरीजों का इंतकाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,450, आजाद कश्मीर में 186 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3,047 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 51,172, गिलगित बल्तिस्तान में 4,770, आजाद कश्मीर में 7,578 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,92,000 हो गई। मरीजों की तादाद 7,09,00,000 हो गई। 4,93,00,000 मरीज सेहतयाबी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के फार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3 लाख, ब्राजील में 1,80,000, मैक्सिको में 1,12,326, फ्रांस में 57,000, अफगानिस्तान में 1,820 और सऊदी अरब में 6,012 अमवात हो चुकी हैं। उम्र 14 साल और कद 3 फुट, मगर काम बड़े बड़े। आशिकाना मिजाज भी नहीं, फिर भी शेरो शायरी पर इंग्लिश में किताब लिख डाली। सूफियाना ज़हन के मालिक नूरुद्दीन, जिनका कहना है कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल ज़हीन बच्चों को आगे लाएं ताकि वो पाकिस्तान का रोशन कर सके पाकिस्तान का नाम। कहते हैं ना, कल के खुदा से मोहब्बत करो तो सब कुछ मिल जाता है। फैमिली में सबसे लविंग कौन है? सभी लविंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लैपटॉप ने लड़की के साथ इश्क करवा दिया, देखे नहीं वो शायर ही क्या जिसे मोहब्बत ना हो। अदाकारा महविशियात आपको शादी की ऑफर करे, अगर वो ऐसा करें तो मैं सोचूं है आपदा परवीन, यूसुफ अली खान, आतिफ असलम के जो सॉन्ग होते हैं उन्हें सुनता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट शजरुद्दीन और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ज़हीन बच्चे के साथ करा रहा हूँ जिसकी उम्र 14 साल और कद जो है वो 3 फुट है। इस ज़हीन बच्चे ने अदबी हलकों में उस वक्त तहका मचा दिया जब इसने छोटी सी उम्र में शेर व शायरी की किताब इंग्लिश में लिख डाली और दुनिया के नामवर शायर इसे दाद दिए बगैर ना रह सके। वन एंड ओनली नूरुद्दीन। जी नूरुद्दीन, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आशिकाना ज़हन भी नहीं और फिर भी आपने शेर व शायरी की किताब इंग्लिश में लिख डाली, इसके पीछे क्या राज है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
आशकाना ज़हन मेरा था, लेकिन मौसमों से, जानवरों से, अल्लाह ताला की मखलूक से, कहते हैं ना खल के खुदा से मोहब्बत करो तो सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए मैं तमाम जो होते हैं लोग उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। यही कहता हूँ कि अगर हम अपने इकबाल को, फराज को, फैज़ को, सबको इकबाल गालिब को पढ़े तो हमारी यूथ कुछ कर सकती है। हमें इन चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए और इन्हें तालीम में हासिल करना चाहिए। अच्छा नूरुल, ये बताएं कि आपकी फैमिली में सबसे लविंग कौन है, फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर? और ये भी बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 बहन भाई हैं। मैं एक हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी बहन है। तो ऐसे सभी लविंग है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे ज़्यादा डैड से मेरी मोहब्बत है, मॉम से है। तो वालिदैन का एहतराम और अदब हमारी कौम पे बाहक है, तो इसीलिए हम इसके बारे में सोचें। अच्छा ये बताएं कि जो है आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और आप भी 24 घंटे लैपटॉप पे जो है वो स्टडी करते रहते हैं, और अगर लैपटॉप ने आपको किसी लड़की के साथ इश्क करवा दिया तो फिर आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें नहीं, वो शायरी क्या जिसे मोहब्बत ना हो, जो कि शायरी के एटमॉस्फेयर से कुछ ना सीखे। तो इसीलिए मैंने अपने आप को शायर नहीं कहा कभी। मैं हमेशा स्टोरीज लिखता रहता हूँ, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि वो इंस्पायर हों, ऐसे काम करें जो कि करने चाहिए। तो इससे बात आपके सवाल की रही, तो बात जवाब ये है कि मैं सोशल मीडिया पर भी लोगों की बात सुनता रहता हूँ, जवाब आते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रपोज करे। अगर वो कर भी दे तो मैं उससे बात को टाल देता हूँ कि मैं इल्मी तौर पे लोगों को इंस्पायर करा। और लैपटॉप पर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो आपने कहा, वो बात ये है कि मैं एक्चुअली जब वक्त मिलता है, कहीं मसरूफ़ ना हूँ तो करता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने मोबाइल पर ही ज़्यादातर काम करता हूँ। अच्छा नूर, ये बताएं कि अगर अदाकारा महविशियात आपको शादी की ऑफर करे तो फिर आपका क्या इरादा है? हाँ, बात अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फेमस जो है फिल्म इंडस्ट्री, लॉलीवुड, उनकी फेमस एक्ट्रेस हैं, बहुत उनके फिल्म और ड्रामे मैंने देखे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। अगर वो ऐसा करें तो मैं सोचूंगा। एक अच्छा शायर हो और उसे म्यूज़िक पसंद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नूर, ये बताएं कि आप किस किस सिंगर को सुनते हैं? आपने सही कहा, मैं आबिदा परवीन, नुसरत फतेह अली खान और आतिफ असलम और कोक स्टूडियो के जो सॉन्ग्स होते हैं उन्हें सुनता हूँ। वाकई कोई ऐसा शायर नहीं है मुझे अभी तक नज़र आया जो कि म्यूज़िक को ना सुने, चाहे वो सूफीज़्म में हो, चाहे वो कोई रीम हो, चाहे वो कुछ हो, है तो म्यूज़िक ही। तो मैं सूफीज़्म के लिहाज से सुनता हूँ और मैं सूफीज़्म को भी पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं सुनता रहता हूँ। मुझे उससे काफ़ी इल्म हासिल हुआ है, साथ साथ मतलब सारा कुछ आता रहता है। मैं यही लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कोक स्टूडियो सुने, कोई और सुने, क्योंकि आबिदा परवीन की आवाज़ वाकई सूफीज़्म है, उसमें कुछ चीज़ नज़र आती है जो बाबुल्ले शाह का कलाम या गुलाम फरीद का, मियाँ मोहम्मद बख्श का कोई शेर, तो ऐसे जब वो उससे पढ़ती हैं तो लगता है वाकई कुछ उसमें नज़र आ रहा है, कुछ की मतलब है उसमें। तो हमें ऐसी चीज़ सुनते रहना चाहिए। अच्छा नूर, ये बताएं कि आपको कौन कौन से शायर पसंद है? शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल, जॉन एलिया, फैज़ अहमद फैज़, और आप किससे मुतासर हैं और आप किसको शौक़ से पढ़ते हैं? उर्दू शायरों में से मैं इकबाल को ज़्यादा पढ़ता हूँ। इकबाल की शायरी हमारे यूथ को हमारी चेंजेस ला सकती है। इकबाल एक वो शायर है जो कि शहीनों को लीड करता है, उसकी शायरी, उसका इवन अदब जो है वो बहुत दूर तक है। इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है जो कि मेरा फेवरेट तरीन है कि बाग में शबनम पड़ती है, बाग में शबनम पड़ती है फ़कत इसलिए पत्ता पत्ता करता है जिक्र, पत्ता पत्ता करता है जिक्र बावजू होकर। तो उनकी ये 2 लाइनों का जो शेर है ना, ये मैं पढ़ा, मुझे बहुत बेहतर लगा और समझ आई कि वाकई इसमें उन्होंने 2 लाइनों में सारा उन्होंने ये दरिया, कूजे में दरिया का वर्णन करने वाली बात।
अच्छा ये बताएं कि सूफीज़म में कौन से शायर आपको पसंद? मैं बाबुल्ले शाह को पढ़ता हूँ, गुलाम फरीद को पढ़ता हूँ और मियाँ मोहम्मद का एक आधा शेर पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे ही सूफीज़म को पढ़ता रहता हूँ और यही जानता हूँ कि सूफीज़म में बहुत नॉलेज है। क्योंकि जो कि बाबुल्ले शाह हैं या कोई भी शायर है, आपदा परवीन ने भी उनको गाया, तो ऐसे बाबुल्ले शाह ने कहा था इस शेर में कि बुल्ले नालो चूल्हा चंगा जिस पर ताम पकाए थे। ताम कहते हैं रोटी को, जो पंजाबी डीप है। तो ये शेर से मैंने सीखा कि उन्होंने शायरी में अपने आप को कुछ नहीं समझा, तो एक दरवेश टाइप थे शायर। तो बहुत बड़ी बात है कि सूफीज़म से मैं कुछ सीखा। अच्छा नूर, आप ये बताएं कि आप अपनी यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं टीवी टुडे के जरिए? मैं बहुत से कोट, बहुत सी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। इकबाल ने कहा था कि अगर नम ना हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है ताकि, तो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। और एक बात और कि मैं रात को कोट पढ़ा था, किसी ने कहा हुआ है कि लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। आप आराम करना सीख लो लेकिन क्विट करना ना सीखो। तो इसलिए हमें कभी गिव अप नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए। जो गिव अप कर देता है वो फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, तो हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जी नाजरीन, आपने देखा कि नूर का ये कहना है कि हौसले बुलंद हों तो मंजिलें मिल ही जाती हैं, और हुकूमत को भी चाहिए कि हम जैसे स्पेशल बच्चों को आगे लाएं ताकि हम दुनिया में अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी स्टडी के ज़रिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शजरुद्दीन को। और नूरुद्दीन पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, तो दूसरी जानिब तो ड्रामा अरतुगरुल अलगाजी के मरकजी किरदार एहसन आलतान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर से रिपोर्ट देखिए शजरुद्दीन की। लाहौर के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आंजन अल्तान का कहना था कि पाकिस्तानी मद्दाहों का शुक्रगुजार हूँ। आंजन अल्तान वजीर आजम इमरान खान की तारीफ किए बगैर न रह सके। It's pleasure to me, of course. The Pakistan Prime Minister loves the TV series and loves me, and I know he had a story of the social media, and I saw it, of course. Thank you very much. It's pleasure to me. Thank you. तुर्क अदाकार आंजन अल्तान ने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अदाकार ने बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया और पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और खानों की खूब तारीफ की। आंजन अल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तसर दौरे पर आया, वरना पाकिस्तान के तारीखी मुकामात देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। कैमरामैन एहसन रजा के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में गैर मुनज़्ज़म सियाहत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। मरी और गिलियाद के सियाहती मकामात पर नाक़िस मनसूबाबंदी से इमारतें खड़ी की गई। सियाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। मकामी लोग दरख्त बचाएंगे तो सियाहत तरक्की करेगी। नथिया गली को बचाने का सहरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाता है। पलूटी होने देंगे क्योंकि उनको पता होगा कि जितनी सफाई होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और उससे इलाके भी प्रिजर्व हो जाएंगे, और फिर हम जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिधर बड़ा मुश्किल है। यानी ये जितने भी आपने इलाके बताए, इधर बड़ा मुश्किल है। लोग शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो नौजवानों के लिए उन इलाकों में अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो ये टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो इनको सस्टेन करेगी। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इको टूरिज़म एक साइंस बन चुकी है, और ये अब अगर आप कई जगह जाएं, मालदीव्स जाएं, तो ये सब साइंस है। कीनियन सफारी पार्क चले जाएं या बाकी जो साउथ अफ्रीका में सफारी पार्क्स है, पूरी साइंस है कि कैसे वो अपने इलाकों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इलाके बचेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरी चीज़ जो हम सबको समझनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म एक्सप्लोड कर चुकी है। जितनी टूरिज़म आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। बाहर से भी जो टूरिज़म आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अंदर पाकिस्तान के टूरिज़म है वो आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। गर्मियों में सारे एक पूरा एक रश लग जाता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये ऊंचे जो इलाके हैं, गर्मी से लोगों ने बचने के लिए,
اور پھر اس کے علاوہ یہ جو موبائل فون ہے اس نے بھی ایک بہت بڑی پروجیکشن کیا ٹورزم میں. لوگ جاتے ہیں اپنی تصویر کھینچتے ہیں فیس بک پہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو اب کوئی ٹورزم کے لیے اشتہار نہیں دینے پڑتے. موبائل فون ہی ایک کی وجہ سے ٹورزم کے یہ جو اسپاٹ